So guys, let's start with the National Faceless Assessment Scheme, which has become effective from 1st April 2021. Let us first understand how many units are there and how many parties will work together to complete an assessment of a particular assessee like you and me. Now, for me, there is no one person, there is whole team-based assessment, and National Faceless Assessment System will be involved. That means directly my assessment will be monitored from Delhi. Okay, so look at this: Faceless Assessment Centers and its unit. So how many units are there? National Faceless Assessment Center, NFASC. Okay, this is a centralized body and this is the main authority which controls and monitors all the proceedings under the Faceless Assessment Scheme. अभी लॉ भी जो बनाएंगे ना, whoever is going to make law, this is the party who is going to make the law. Please ये समझने का ट्राई करो. This is the party which is going to make final order. फाइनल ऑर्डर नेशनल फेसलेस असेसमेंट स्कीम सिस्टम जो है ना सेंटर, वो बनाएगा अकॉर्डिंग टू न्यू स्कीम. नॉट पर्टिकुलर एओ, नॉट पर्टिकुलर एओ, एओ नहीं बनाएगा आपका ऑर्डर, नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर बनाएगा. एंड देयरफॉर यू कैन नॉट रीच आउट टू देम and you don't know in National Faceless Assessment Center which unit is actually working for you. You will never come to know about it. Not only that, उन्होंने रीजनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर्स भी बनाए हैं. And regional means it need not to be a Mumbai SSC, need not to be controlled by Mumbai department. A Mumbai SSC can be controlled by Delhi, can be controlled by Assam, can be controlled by Kolkata, can be controlled by any random town in India. तो जो रीजनल होता है उसके अंदर कौन कौन होता है, ओके, उसका बाइफर्केशन क्या क्या होता है, who is there in regional faceless assessment center. तो there are 4 units: assessment unit, verification unit, टेक्निकल यूनिट एंड रिव्यू यूनिट. देखो इनके यहाँ पे रीजनल में भी कितने यूनिट है, 4 यूनिट है. असेसमेंट यूनिट अलग है, वेरिफिकेशन यूनिट अलग है, टेक्निकल यूनिट अलग है, रिव्यू यूनिट अलग है. और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, द फाइनल असेसमेंट ऑर्डर शैल बी मेड बाय नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर. इन रीजनल यूनिट्स को पावर नहीं दिया है. इफ दे गिव द पावर टू रीजनल यूनिट, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ मैनिपुलेशन. Therefore, they have not given power to the regional unit. Regional unit is supposed to prepare a draft order, and draft order will be given to the National Faceless Assessment Center, and National Faceless Assessment Center is the final authority which will give the final order to the assessee, not by the regional unit. And therefore, regional units will not have any interaction with assessee directly. और क्योंकि उनका कोई interaction नहीं होने वाला, the possibility of corruption is minimal. I should not say zero, but it is minimal. Okay. फंक्शंस तो देख लो सबका फंक्शंस क्या क्या, असेसमेंट यूनिट में क्या क्या काम होगा. देयर आर 4 यूनिट्स, राइट? देयर आर 4 यूनिट्स ऑफ अ रीजनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर. तो देखते हैं उसमें कौन कौन होता है. असेसमेंट यूनिट का रिस्पॉन्सिबिलिटी देखो: आइडेंटिफिकेशन ऑफ पॉइंट्स एंड इश्यूज, सीकिंग द इंफॉर्मेशन एंड क्लैरिफिकेशन, एनालाइजिंग द मटेरियल फर्निश्ड बाय द असेसी, असिस्ट इन द असेसमेंट. इसका ये काम होता है कि आप इश्यू रेज करो, आपको जो डॉक्यूमेंट दिए गए उनको वेरीफाई करो, आप एडिशनल डॉक्यूमेंट डिमांड करो. डायरेक्टली असेसी से नो 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 नो. Assessment unit will submit the requirement to the National Faceless Assessment Center, or National Faceless Assessment Center assessee को लेटर लिखेगा. They are not supposed to communicate directly with any assessee. उनके पास इनफैक्ट डेटा भी नहीं दिया जाएगा. वेरिफिकेशन यूनिट, इंक्वायरी. वेरिफिकेशन यूनिट क्या करेगा? इंक्वायरी करेगा, क्रॉस वेरिफिकेशन करेगा. जैसे मैंने बैंक स्टेटमेंट दिया हुआ है and they are having suspicion on my bank statement itself, so verification unit can write a letter to the bank directly and bank से statement लेके cross verify कर सकता है. Or verification unit can write a letter to my debtors, my creditors to verify my business model. Examine the books of accounts and witnesses, recording the statements and other function that may be required for the verification purpose. So sometime technical unit is also required. Sir technical unit क्यों लगता है? Valuation वगैरह कराने के लिए. तो टेक्निकल असिस्टेंट देगा, बिकॉज एवरीथिंग इज फेसलेस नाउ. ऑब्वियसली एवरी ऑफिसर इज नॉट इक्विप्ड विद द टेक्निकल डिजिटलाइजेशन. तो उनको क्या करना पड़ेगा? उनको लर्न करना पड़ेगा. टेक्निकल यूनिट विल प्रोवाइड ऑल द रिक्वायर्ड असिस्टेंस एंड नॉट ओनली दैट, एडवाइज ऑन लीगल, अकाउंटिंग, फोरेंसिक, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वैल्यूएशन, ट्रांसफर प्राइसिंग, डेटा एनालिस्ट, मैनेजमेंट एंड अदर टेक्निकल मैटर्स. इनके ऊपर वो लोग कुछ ना कुछ आपको सॉफ्टवेयर बना के देंगे, कुछ आपको प्रोसीजर बना के देंगे. दे विल ट्रेन यू एंड यू कैन टेक द टेक्निकल यूनिट का असिस्टेंट.
सर इतना सब होने के बाद रिव्यू यूनिट क्या करेगा? रिव्यू यूनिट इन लोगों के ऑर्डर्स को रिव्यू करेगा वेदर दे आर गोइंग इन अ राइट डायरेक्शन और नॉट। अ रिव्यू ऑफ अ ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर, तो पहला रिव्यू तो रिव्यू यूनिट कर रहा है, आप ये समझो। ओके, चेकिंग वेदर the relevant material and evidence is on record, relevant point of facts and law are duly incorporated। तो अपने लॉ के हिसाब से सारे फैक्ट्स को कंसिडर करके ही आपने ऑर्डर बनाया हुआ है, दे आर जस्ट चेकिंग इट। एंड एप्लीकेबल जुडिशियल डिसीजंस, जब रिव्यू यूनिट टाइप करेगा आपका जो कोई भी मैटर, कोई भी सेक्शन के ऊपर मैटर जब होता है, जैसे पीजीबीपी का सबसे फेमस सेक्शन है जिसके ऊपर मैटर होते रहते हैं 37(1), तो 37(1) जब टाइप करेगा तो उसके रिलेवेंट जो केस लॉज होते हैं वो सारे केस लॉज रिव्यू यूनिट के सामने ओपन हो जाएंगे। रिव्यू यूनिट विल ट्राई टू सी वेदर यू हैव मिस्ड एनी केस लॉ और नॉट, तो उनके पास सारे केस लॉ अभी सॉफ्ट कॉपी में अवेलेबल होंगे। एंड देयर विल बी अ सिस्टम थ्रू व्हिच दे कैन क्रॉस चेक वेदर एनी पर्टिकुलर केस लॉ इज एप्लीकेबल इन योर केस, तो वो सब अभी रिव्यू यूनिट करेगा, ठीक है ना। अनदर फंक्शन नेसेसरी फॉर द रिव्यू पर्पज, तो इतने इनके फंक्शंस है। सर अगर अभी तक नोटिस दिया ही नहीं गया है, मतलब ये स्कीम तो सर 1 अप्रैल 2021 पे आया, तो मेनी असेसीज आर नॉट सर्व्ड नोटिस ऑन दिस पर्टिकुलर डे। नोटिस अभी उनको अभी देना है, अप्रैल में देना है, जून में देना है, जुलाई में देना है, अगस्त में देना है। सर राइट नाउ डिपार्टमेंट वांटेड टू सेंड द नोटिस, कैन AO, कैन रीजनल AO सेंड यू द नोटिस? डेफिनेटली नो। तो नोटिस भी आपको कौन देगा? अ नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर टू सर्व नोटिस टू द असेसी अंडर सेक्शन 143(2). अगर आपका स्क्रूटिनी ओपन करना है तो आपको डायरेक्टली नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर नोटिस देगा, रीजनल पे नोटिस नहीं आएगा। असेसी टू फाइल रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स किसको करना है? AO को? जी नहीं, असेसी को रिस्पॉन्स भी किसको करना है? नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर विद इन 15 डेज फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ द नोटिस। चलो ये तो हो गया सर वो न्यू मैटर जो चालू होने वाले हैं। सो व्हाट अबाउट पेंडिंग मैटर्स? द मैटर्स विच आर ऑलरेडी पेंडिंग नाउ। पेंडिंग मैटर्स को तो डिपार्टमेंट उसी तरीके से चलाएगा ना जैसे पहले चलता था? जी नहीं, क्योंकि अगर पेंडिंग मैटर को अगर उसी तरीके से चलाने ट्राई करेंगे तो अगेन करप्शन होगा। तो डिपार्टमेंट ने बोला नहीं नहीं नहीं, जो भी ऑफलाइन हो रहा है उस सबको ऑनलाइन लेकर आओ। जो भी अभी विथ फेस हो रहा है एवरीथिंग शुड बिकम फेसलेस, और उन्होंने वो सारे ऑर्डर पास कर दिए। आपकी किसी भी सेक्शन में इंक्वायरी अगर चालू हुई है, सेक्शन 143(3) स्क्रूटिनी, 147 इनकम एस्केपिंग असेसमेंट, 144 बेस जजमेंट असेसमेंट, 142 का आपने नोटिस दिया हुआ है टू सीक एन इंफॉर्मेशन राइट नोटिस, एनी नोटिस, ठीक है ना। एवरीथिंग हैज टू बी नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर टू इंटीमेट द असेसी कि भैया आपका जो ऑफलाइन था अभी सब कुछ ऑनलाइन होगा, दैट द असेसमेंट शैल बी कंप्लीटेड अंडर 144B इन फेसलेस मैनर, ठीक है ना। तो ये सारी बातें होगी। सर तो मेरा डेटा जब नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर के पास चले जाएगा तो कोई ना कोई AO या कोई ना कोई रीजनल यूनिट मुझे अलोकेट होगा ना? यस, अलोकेशन होगा। सर ये जो अलोकेट करता है ना उसको ही मैं पैसे दे दूंगा और बोलूंगा मेरे जो एरिया है ना मुंबई में उसको आप केस अलोकेट करो, तो मैं जाके उनको मिलूं, कुछ ना कुछ हम लोग एडजस्टमेंट कर पाए। नहीं हो सकता, क्योंकि नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर विल असाइन द केस टू वन ऑफ द असेसमेंट यूनिट इन एनी वन। आपको नहीं बोला आपके एरिया में, उन्होंने बोला एनी वन रीजनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर। तो रीजनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर में जाएगा, लेकिन कौन से? वी नेवर नो। और ये जाएगा कैसे? ऑटोमेटेड अलोकेशन सिस्टम से, EES, ठीक है ना, AAS यूज होगा। और ऑटोमेटेड अलोकेशन सिस्टम जो मैंने आपको कॉल सेंटर का रेफरेंस दिया कि कॉल सेंटर में कैसे कॉल ट्रांसफर होता है, द ऑफिसर विच इज फ्री विल टेक योर कॉल। तो और उनके पास पहले से सारा रिकॉर्ड अवेलेबल होता है उनके सिस्टम में। द सेम सिस्टम, सेम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज यूज बाय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नाउ। तो इतना आसान थोड़ी ना कि ये सब इंप्लीमेंट करना, इट टेक्स डेफिनेटली टाइम एंड वी हैव टू गिव दिस टाइम टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि चलो ठीक है, यू टेक अ टाइम बट यू डेवलप अ सिस्टम व्हिच इज सस्टेनेबल इन द लॉन्गर टर्म, and this is the best possible version of income tax department. Let me tell you, let us listen to Mr. Modi sir for hardly a 1 minute on the launch date, what he's trying to show, what he's trying to say. So and please type if you are not able to hear, try to hear. First of all, I'm putting my mic near speaker so that you should be able to hear it clearly, और नहीं होता तो please tell me. स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स का सिलसिला
आज एक नए पड़ाव पर पहुंचा है। ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन, ऑनरिंग द ऑनेस्ट। 21वीं सदी के टैक्स सिस्टम की इस नई व्यवस्था का आज लोकार्पण किया गया है। इस प्लेटफॉर्म में फेसलेस असेसमेंट, फेसलेस अपील और टैक्स पेयर चार्टर जैसे बड़े रिफॉर्म्स हैं। फेसलेस असेसमेंट और टैक्स पेयर चार्टर आज से ही लागू हो गए, जबकि फेसलेस अपील की सुविधा 25 सितंबर यानी दीनदयाल उपाध्याय जी के जन्मदिन से पूरे देश भर में नागरिकों के लिए उपलब्ध हो जाएगी। I'm Richard Branson, and I have a once-in-a-lifetime invitation for you. Would you like to travel to space? जीएसटी आ गया। रिटर्न से लेकर रिफंड की व्यवस्था को पूरी तरह से ऑनलाइन किया गया। जो नया स्लैब सिस्टम आया है, उसमें बेवजह के कागजों और दस्तावेजों को जुटाने की मजबूरी से मुक्ति मिल गई है। यही नहीं, पहले 10 लाख रुपए से ऊपर के विवादों को लेकर सरकार हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाती थी। अब हाई कोर्ट में 1 करोड़ रुपए तक के और सुप्रीम कोर्ट में 2 करोड़ रुपए तक के केस की सीमा तय की गई है। विवाद से विश्वास जैसी योजना से कोशिश ये है कि ज्यादातर मामले कोर्ट से बाहर ही सुलझ जाए। इसी का नतीजा है कि बहुत कम समय में ही करीब 3 लाख मामलों को सुलझाया जा चुका है। साथियों, प्रक्रियाओं की जटिलताओं के साथ साथ देश में टैक्स भी कम किया गया है। 5 लाख रुपए की आय पर अब टैक्स 0 है। बाकी स्लैब में भी टैक्स कम हुआ है। कॉर्पोरेट टैक्स के मामले में हम दुनिया में सबसे कम टैक्स लेने वाले देशों में से एक हैं। साथियों, कोशिश ये है कि हमारी टैक्स प्रणाली सीमलेस हो, पेनलेस हो, फेसलेस हो। सीमलेस यानी टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन हर टैक्स पेयर को उलझाने के बजाय समस्या को सुलझाने के लिए काम करे। पेनलेस यानी टेक्नोलॉजी से लेकर रूल्स तक सब कुछ सिंपल हो। फेसलेस यानी टैक्स पेयर कौन है और टैक्स ऑफिसर कौन है, इससे मतलब ही नहीं होना चाहिए। आज से लागू होने वाले ये रिफॉर्म्स इसी सोच को आगे बढ़ाने वाले हैं। साथियों, अभी तक तो होता यह है कि जिस शहर में हम रहते हैं उसी शहर का टैक्स डिपार्टमेंट हमारी टैक्स से जुड़ी सभी बातों को हैंडल करता है। स्क्रूटिनी हो, नोटिस हो, सर्वे हो या फिर जब्ती हो, इसमें उसी शहर के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की आयकर अधिकारी की मुख्य भूमिका रहती है। अब ये भूमिका एक प्रकार से
खत्म हो गई है। अब इसको टेक्नोलॉजी की मदद से बदल दिया गया है। अब स्क्रूटिनी के मामलों को देश के किसी भी क्षेत्र में किसी भी अधिकारी के पास रैंडम तरीके से आवंटित किया जाएगा। अब जैसे मुंबई के किसी टैक्स पेयर का रिटर्न से जुड़ा कोई मामला सामने आता है, तब इसकी छानबीन का जिम्मा मुंबई के अधिकारी के पास नहीं जाएगा, बल्कि संभव है कि वो चेन्नई चला जाए, गुवाहाटी चला जाए, रायपुर चला जाए, अहमदाबाद चला जाए, वो फेसलेस टीम के पास जा सकता है और वहां से भी जो आदेश निकलेगा उसका रिव्यू किसी दूसरे शहर, कहीं जयपुर हो जाएगा, बेंगलुरु हो जाएगा, चेन्नई हो जाएगा, कोची हो जाएगा, वहां की टीम करेगी। अब फेसलेस टीम कौन सी होगी, इसमें कौन होगा, ये भी कंप्यूटर रैंडमली तय करेगा और ये प्रक्रिया भी बार बार उसमें बदलाव होता रहेगा। साथियों, इस सिस्टम से करदाता और इनकम टैक्स दफ्तर को जान पहचान बनाने का, प्रभाव और दबाव का मौका अब जीरो हो गया। सब अपने अपने दायित्व के हिसाब से काम करेंगे। डिपार्टमेंट को इससे लाभ ये होगा कि अनावश्यक मुकदमेबाजी बचेंगे उससे। दूसरा, ट्रांसफर पोस्टिंग में लगने वाली गैर जरूरी ऊर्जा से भी अब राहत मिलेगी। इसी तरह टैक्स से जुड़े मामलों की जांच के साथ साथ अपील भी अब फेसलेस होगी। साथियों, इस एक महत्वपूर्ण रिफॉर्म के साथ साथ आज भारत एक बहुत महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है और वो है टैक्स पेयर चार्टर। I hope you got a brief idea what our government is trying to do and why they are trying to do so. So our responsibility is to read this particular scheme, try to understand it, and whenever you get an opportunity to work in a practical life, you must work on it. We are running our first case on faceless assessment now. It's ongoing. One of our client in Mumbai who is related to real estate is being served notice under faceless assessment scheme, and we are trying to handle the case because it requires some kind of what you say confidentiality. I'm not able to show you the notice, nahi to main aapko notice bhi dikha deta. I have told stories about him to you guys. Do you remember that guy with the glass? Sometime in past I must have told you. Yes, yes. Yeah, that guy has been served a notice under faceless assessment, and as I told you, मतलब मैंने शायद आप जब इंटरमीडिएट में थे तभी मैंने आपको बताया था कि आज नहीं तो कल इनको नोटिस जरूर आएगा, and it has been served. So what I'm trying to show you with tell you with a very much confidence that now evading tax has become more and more difficult, and people, companies, taxpayers, professionals like you and me should not indulge into tax avoidance scheme. Abhi tax ko mat avoid karo. You need to pay the tax, otherwise in the future you are creating a very risky scenario for yourself, your business and your family as a whole. तो ये नहीं करोगे वही अच्छा है, and this is what this kind of fear has to be there in the mind of the taxpayer कि सर अभी नहीं चलेगा. अब तक चलता था, like everybody used to say अरे टैक्स हमारे दादाजी ने टैक्स नहीं भरा, हमारे पापा ने नहीं भरा, हम काहे का भरेंगे. So that particular thought process has to change, because right now we have launched a 21st century tax system in the India. Obviously this system has a lot of improvement, because I'm a user of it. I'm telling you lot of improvements are possible, and they will do it on a regular basis. It can be done, it can be managed, but the beautiful scheme, let's see how the scheme is going to be going to work in our country.
Yeah, definitely. It's not 3 trillion, it's a 3. If they are having the imagination of creating a 5 trillion economy by the end of 2024, तो उनका next election आने तक ये होना था. Obviously, COVID is one of the setback. It's not one of the setback, it's the biggest setback that Indian economy or global economy, in fact, is going through. But still, we will recover. By this March, I guess we should be able to regain the confidence in the business. We should be able to do the business. We should be able to open up the business. And you people should take vaccine as soon as possible. I guess Deep is there with us. Deep has taken the vaccine and I'm happy for him. He messaged me, sir, I have taken the vaccine and I was not feeling well. I hope Deep is there today. So assessment unit request to the National Faceless Assessment Center. जब भी केस ओपन होता है असेसमेंट यूनिट के पास. असेसमेंट यूनिट के बाद केस कैसे गया था? By using AAS, automated allocation system, in any regional unit. Like he mentioned, Modi sir mentioned, if the case belongs to the Mumbai, the assessment unit may be in Chennai. Okay, we don't know. या गुवाहाटी में होगा या जयपुर में होगा. We never know हमारा यूनिट कहाँ पे. Wherever is our unit, that unit will request National Faceless Assessment Center. तो समझो कि यहाँ पे असेसमेंट यूनिट है, यहाँ पे नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर है और यहाँ पे असेसी है. असेसी से ये लोग डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं करेंगे. दे विल ऑलवेज इंटरेक्ट थ्रू द नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर. ये लोग नोटिस नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर को देंगे. नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर ये नोटिस असेसी को देगा. असेसी रिप्लाई नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर को देगा. ये रिप्लाई असेसमेंट यूनिट को फॉरवर्ड किया जाएगा. दैट मींस जीरो इंटरेक्शन बिटवीन असेसमेंट यूनिट एंड असेसी विल हैपन नाउ. सर क्या रिक्वेस्ट करेंगे असेसमेंट यूनिट? व्हाट दे नीड फॉर कंडक्टिंग द असेसमेंट? दे नीड इंफॉर्मेशन, ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन, डॉक्यूमेंट एविडेंस फ्रॉम द असेसी और एनी अदर पर्सन स्पेसिफाइड. तो वो लोग इंफॉर्मेशन मांगेंगे. फिर और क्या मांग सकते हैं सर? और क्या मांग सकते हैं? कंडक्टिंग इंक्वायरी और वेरिफिकेशन. इंक्वायरी और वेरिफिकेशन बाय द वेरिफिकेशन यूनिट. सर वेरिफिकेशन यूनिट को बोल सकते हैं कि सर प्लीज कुछ वेरिफिकेशन करो, जाके उसका फैक्ट्री विजिट करो, देखो कि क्या हो रहा है वहां पे. एनीथिंग कैन बी डन. या उसके डॉक्यूमेंट क्रॉस चेक करो, उनके डेटर्स को कॉल करो, और अगर उनको कोई टेक्निकल इश्यू आ रहा है तो दे कैन आल्सो टेक अ टेक्निकल असिस्टेंट फ्रॉम द टेक्निकल यूनिट. तो आप देख सकते हो कि नेशनल फेसलेस असेसमेंट को ये रिक्वेस्ट करेंगे, सर हमें ये सब इंफॉर्मेशन चाहिए, वेरिफिकेशन करके चाहिए, हम ये टेक्निकल सपोर्ट चाहिए. अब नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर क्या करेगा? National Faceless Assessment Center to issue notice to the assessee or other person for the information, documents or evidence submitted to the National Faceless Assessment Center in the given period of time. Assessee ये सारे information दे देगा. Assessee will send all the document and evidence to National Faceless Assessment Center within the time prescribed or time extended on the request of the assessee. और इतनी सारी की सारी information National Faceless Assessment Center to send this information and report received from verification unit, जो वेरीफाई होने के बाद वेरिफिकेशन यूनिट. और वेरिफिकेशन यूनिट भी कैसे सिलेक्ट किया जाएगा? फिक्स नहीं है. वो लोग नहीं बताएंगे कि हमें ये वाला वेरिफिकेशन यूनिट चाहिए. अ फेसलेस असेसमेंट सेंटर, नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर will use automated allocation system to select a verification unit which is going to verify the data given by the assessee. और टेक्निकल यूनिट को भी ऑटोमेटेड एलोकेशन सिस्टम से ही सिलेक्ट किया जाएगा. इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जरूरी नहीं है कि असेसमेंट यूनिट, टेक्निकल यूनिट, आपका वेरिफिकेशन यूनिट सारे एक ही रीजन के, ये भी जरूरी नहीं है. पता चला कि आपका जो असेसमेंट यूनिट है वो गुवाहाटी का है, वेरिफिकेशन यूनिट जो है वो चेन्नई का है, टेक्निकल यूनिट जो है वो दिल्ली का है. इट इज पॉसिबल नाउ. ये लोग एक टाइम पे एक जगह पे नहीं होंगे. ओके, एंड दैट्स नोन एज ऑटोमेटेड एलोकेशन सिस्टम. वेरिफिकेशन यूनिट एंड टेक्निकल यूनिट विल सेंड अ रिपोर्ट टू द नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर. डायरेक्टली असेसमेंट यूनिट से वो लोग भी इंटरेक्ट नहीं कर रहे. ओके, तो यहाँ पे ना एवरीबॉडी इज इंटरेक्टेड. यहाँ पे ना असेसमेंट यूनिट है, वेरिफिकेशन यूनिट है, टेक्निकल यूनिट है. एवरीबॉडी इज इंटरेक्टिंग थ्रू टू नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर. अपना रिपोर्ट वो यहाँ पे सबमिट करते हैं और यहाँ से रिपोर्ट फिर असेसमेंट यूनिट को पास होता है. ओके, National Faceless Assessment Center to send the information report received from the verification unit and or technical unit to the assessment unit and National Faceless Center to send the document and information and evidence received from the assessee to the assessment unit. तो वेरिफिकेशन यूनिट से जो डेटा आया, टेक्निकल यूनिट से जो डेटा आया, असेसी से जो डेटा आया, सारा डेटा असेसमेंट यूनिट को हैंड ओवर किया जाएगा.
and then assessment unit will have its own analysis और उसके हिसाब से वो लोग कंटिन्यू करेंगे. If assessee fails, assessee ने अगर फेल किया, क्या सर? Fails to submit the document, information and evidence asked by National Faceless Assessment Center, fails to comply with the notice under 142(1), राय नोटिस का रिप्लाई नहीं दिया, जो टैक्स ऑडिट आया था आपके यहाँ पे स्पेशल ऑडिट, उसका रिप्लाई नहीं दिया, तो आपको पता है फिर आप लोगों का अभी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट होना चाहिए. द नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर, एओ नहीं, अगेन नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर shall serve a show cause notice under section 144 to why base judgment assessment should not be made. आप assessee का base judgment क्यों ना हो, इसका आपको एक नोटिस आएगा, उस नोटिस से आपको डर लगना चाहिए, उसका रिप्लाई आपको देना चाहिए. If assessee response is received by, उसने assessee ने response किया, ठीक है ना, within a time prescribed, तो assessee response is satisfactory, assessee का response receive भी हुआ और satisfactory भी था, then 144 will not be done, तो नॉर्मल अपना जैसा स्क्रूटिनी चलता है वैसे होगा. If reply is not satisfactory, then National Faceless Assessment Center will intimate assessment unit to make the best judgment assessment. और अगर उसने रिप्लाई दिया ही नहीं, रिप्लाई was not received at all, तभी भी आपका बेस्ट जजमेंट असेसमेंट हो ही जाएगा. ओके, क्योंकि बेस्ट जजमेंट असेसमेंट नहीं करना पड़ेगा, हमारे पास कोई चॉइस नहीं है. On the basis of material gathered in point number 3 and point number 4, point number 3 by using the assessee, verification unit, technical unit या बेस्ट जजमेंट असेसमेंट करके आपके पास जितना भी डेटा आया, सर क्या असेसमेंट यूनिट असेसमेंट ऑर्डर बनाएगा? जी नहीं, असेसमेंट यूनिट विल मेक ओनली अ ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर. यहाँ पे पहली बार ड्राफ्ट ऑर्डर बना, वो याद रखो. फर्स्ट टाइम यू आर लिसनिंग द वर्ड ड्राफ्ट ऑर्डर इन फेसलेस असेसमेंट स्कीम, कि पहला ड्राफ्ट ऑर्डर यहाँ पे बना. Assessment unit to make a draft order under section 143 scrutiny, 144 base judgment assessment, 147 income escaping assessment with cooperation of the assessee, income escaping assessment without cooperation of the assessee. तो 147 आपका अभी पेंडिंग है, वो बाद में जब बात करेंगे तो कर लेंगे. In the draft assessment order, assessment unit may accept the income as a return, या तो जो assessee ने दिखाया वो accept होगा, या make verification, make variation and compute the income to the best of the judgment where violation of 144 are there. तो आपको क्या करना है सर? आपने अगर असेसी ने अगर रिप्लाई नहीं दिया है तो आप अपने हिसाब से वेरिएशन करके ड्राफ्ट ऑर्डर बना के वो सबमिट कर दो. ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर विल बी सेंट, ये सेंड किया जाएगा सर बाय द असेसमेंट यूनिट. किसको दिया जाएगा? असेसी को? जी नहीं, ड्राफ्ट ऑर्डर भी दिया जाएगा नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर को. एंड इन द ड्राफ्ट ऑर्डर असेसमेंट यूनिट will also mention details of penalty or penalties to be initiated. सर यहाँ पे असेसी को हम कौन सा पेनाल्टी लगाएंगे ना, वो भी लिखा जाएगा, जो अब तक कभी नहीं होता था. अब तक असेसमेंट हो जाता था, असेसमेंट ऑर्डर निकल जाता था, टैक्स का रिकवरी होता था, लेकिन पेनाल्टी का रिकवरी नहीं होता था, क्योंकि पेनाल्टी लगाना वाज एन डिस्क्रिशन गिवन टू द एओ, क्योंकि डिस्क्रिशन एओ को दिया गया था. एओ के ऊपर डिपेंड था कि आपको कितना पेनाल्टी लगे या नहीं लगे. तो एओ हमेशा इस पावर को मिसयूज करता था और असेसी को प्रेशराइज करता था. इफ यू डोंट गिव मी सम कमीशन और समथिंग लाइक दैट, अगर आप मुझे कोई बेनिफिट नहीं दोगे तो आई हैव पावर टू लेवी पेनाल्टी ऑन यू. ये पावर ये अभी एओ का निकाल दिया. नाउ असेसमेंट यूनिट हैज टू लेवी द पेनाल्टी इन ऑल द पॉसिबल केसेस, और वो इंटीमेट कर देगा, और इंटीमेटेड ऑर्डर आगे रिव्यू यूनिट के पास चले जाएगा डायरेक्टली. अभी तक ये ऑर्डर, अभी तक आप देखो कि अभी तक ये ऑर्डर असेसी के पास नहीं पहुंचा है. असेसी को पता ही नहीं कि उसके साथ क्या क्या हो रहा है डिपार्टमेंट में. ओके, उसने तो खाली रिप्लाई सबमिट किया है, बाकी सारा रिप्लाई टीम बेस्ड डायनामिक ज्यूरिडिक्शन की वजह से क्रॉस चेक हुआ जाएगा. नेक्स्ट पॉइंट थोड़ा बड़ा है, इट विल टेक लिटिल टाइम, और यहाँ पे टाइम आउट होने आया है, तो यू कैन टेक couple of minutes break, और फिर इसके बाद हम चालू करेंगे 8:30 को. We will start at 8:30. Please re-log in at 8:30 after 6 minutes.